Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today we're going to discuss our new subtopic of chapter 2, which is isotopes. So let's start with our first point, which is define isotopes as different atoms of the same element that have the same number of protons but different number of neutrons. So isotopes अगर वो आपसे डेफिनेशन पूछे तो you have to write that isotopes are different atoms different atoms of the same element that contains the same number of protons but different number of neutrons. आप इवन ये भी कह सकते हैं कि isotopes are different atoms of the same element that has the same atomic number but different atomic mass. ठीक है? And why do I say that? क्योंकि same number of protons, क्योंकि atomic number जो होता है वो proton number भी होता है, तो that's why we can say that it has the same atomic number but different number of neutrons. क्यों? क्योंकि अगर atomic mass different होगा तो फिर जब आप neutrons calculate करेंगे तो वो भी different होंगे. तो you can also say it contains different mass number और nucleon number. ठीक है? अगर आइसोटोप्स की मैं एग्जांपल की बात करूँ तो लेट्स टेक सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कार्बन 12 की. अब कार्बन 12 एक नॉर्मल एलिमेंट है जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी, इसका सिंबल सी, 6 and 12. ठीक है, ये 6 इसका एटॉमिक नंबर, 12 इसका एटॉमिक मास. अगर हम इसके आइसोटोप की बात करें तो इसका आइसोटोप होता है कार्बन 14 और इसको हम C14 और 6 भी लिख सकते हैं. अब अगर हम नोटिस करें कि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है, तो इसका ये मतलब है कि जो एटॉमिक मास है वो चेंज होती है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहता है, उसमें भी 6, इसमें भी 6. इसलिए you can also say that it contains different number of neutrons. इसका न्यूट्रॉन कैलकुलेट करें 12 माइनस 6 तो 6 आएगा, इसके कैलकुलेट करें 14 माइनस 6 तो 8 आएगा. अच्छा, ये आइसोटोप को हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. पहले हम एलिमेंट का नाम लिखेंगे, फिर डैश एंड देन द मास नंबर विच इज़ 14. ठीक है. अब another example I can give you is के हाइड्रोजन के आइसोटोप्स. हाइड्रोजन आइसोटोप्स. इसमें हमारे पास H11, H12 एंड H इस तरह लिख देता हूँ मैं 21 एंड 31. इसी अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की, 1 सेकेंड. ओके, अगर हम इसके प्रोटॉन की बात करें तो ऑब्वियसली एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी एक है, बट न्यूट्रॉन इसके 0 है. 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इसके प्रोटॉन की बात करें स्टिल 1, इलेक्ट्रॉन की बात करें स्टिल 1, न्यूट्रॉन की बात करें तो 2 माइनस 1 इज़ 1. इसकी बात करें प्रोटॉन स्टिल 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टिल 1,
but number of neutrons 3 minus 1 is equal to 2. अब according to the isotope definition number of protons सेम है लेकिन number of neutrons चेंज हो रहे हैं और ये atoms of the same element है. ठीक है. सेकंड पॉइंट ये हमने डिस्कस कर लिया था. इंटरप्रेट एंड यूज सिंबल्स फॉर एटम्स, फॉर एग्जांपल C12 6 एंड आयंस फॉर एग्जांपल Cl माइनस. ये पहले हमने डिस्कस कर लिया. थर्ड पॉइंट पे आते हैं तो इट सेज के स्टेट दैट isotopes of the same element have the same chemical properties because they have the same number of electrons and therefore the same electronic configuration. Okay, let's discuss this. Isotope का ये एक point है that you have to remember that isotopes have the same chemical properties. किसी चीज़ की chemical properties same तब होती है when it has the same number of electrons, क्योंकि atomic number same होता है isotopes में. In their outer shell. Same chemical properties तब होती हैं जब same number of electrons हो in their outer shell. Same number of electrons का ये मतलब है क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि electronic configuration is associated with the number of electrons. तो अगर number of electrons same होंगे तो isotopes have the same electronic configuration. अच्छा, डिफरेंस आता है हमारा न्यूट्रॉन्स में जो कि न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं और डिफरेंस इन मास जो होती है क्योंकि मास नंबर चेंज होता है तो डिफरेंस इन मास इट अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो हम ये करेंगे कि isotopes have different physical properties. Physical properties में क्या आ गया? For example, density, melting point and boiling point. Isotopes का एक और पॉइंट आप ये याद रखें कि isotopes are identical in appearance. तो अगर C14 है तो that would look the same as C12. Okay? अब हम आते हैं अपने फाइनल पॉइंट पे which is the calculate the relative atomic mass of an element from the relative masses and abundances of its isotopes. Okay. ये फोर्थ पॉइंट अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ relative atomic mass. Okay. Relative atomic mass, it is the average of the mass number of the different isotopes in the ratio of their occurrence in nature relative to the mass of an atom of C12. आप ये भी कह सकते हैं कि
It is the mass of an element, mass of an atom of an element when compared to the mass of an atom of carbon 12. आप को मैं अगर फर्दर सिम्प्लीफाई करूँ तो आप ये कह सकते हैं कि relative, इसको मैं RAM लिख देता हूँ, relative atomic mass is equal to 1/12 of the mass of carbon 12. अच्छा, ये कार्बन 12 का क्या कॉन्सेप्ट है? कार्बन 12 जो है इसको हम ऐसा स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं ताकि हम जो बाकी एलिमेंट्स हैं उसको इसके साथ कंपेयर कर सकें, क्योंकि इसमें रेशोज़ होते हैं और रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट कोई भी नहीं होता. रिलेटिव एटॉमिक मास हैज़ नो यूनिट्स. तो इसलिए हमने कार्बन 12 लिया है ताकि ऐसे स्टैंडर्ड वैल्यू लेके हम इसको बाकी एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करें. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ले लेते हैं. हाइड्रोजन की जो रिलेटिव एटॉमिक मास होती है वो होती है 1. इट मीन्स कि हाइड्रोजन को हम मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तब जाके उसके एग्जैक्टली सेम मास बनेगी एज 1 एटम ऑफ कार्बन. इट मीन्स कि हाइड्रोजन को 12 एटम्स चाहिए होंगे ताकि वो 1 एटम ऑफ कार्बन जितनी मास को पहुंच सके. ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन 12 कि इट इज़ जस्ट अ स्टैंडर्ड वैल्यू जिससे हम बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं. दैट्स ऑल यू नीड टू नो. अब आगे हम डिस्कस करते हैं. अच्छा, उससे पहले आपको मैं क्लोरीन की एग्जांपल देता हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट. क्लोरीन के दो आइसोटोप है, दैट इज Cl35 एंड Cl37. Cl35 इसकी जो अबंडेंस है वो है 75%, Cl37 की 25%. अगर हमसे वो पूछे कि कैलकुलेट relative atomic mass of chlorine, तो हम कैसे करेंगे? इसका हम फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे कि relative atomic mass, इसको मैं RAM लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू सम ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, सम ऑफ abundance of isotope into mass of isotope divided by 100. तो अगर हमसे वो पूछे कि relative atomic mass of chlorine कैलकुलेट करें तो हम किस तरह करेंगे? सबसे पहले we have abundance of isotope. क्लोरीन 35 की 75 है. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? मास ऑफ आइसोटोप. क्लोरीन 35 है तो 35 इसका मास है, तो हम 75 इंटू 35 करेंगे. और क्योंकि ये सम है तो हम फिर प्लस करेंगे. इसमें ऐड करेंगे हम सेकंड आइसोटोप विच इज़, सबसे पहले अबंडेंस ऑफ आइसोटोप लिखेंगे विच इज़ 25 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ आइसोटोप. मास ऑफ आइसोटोप क्लोरीन 37 की क्या? 37. ये इसकी आइसोटोपिक मास है. इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35.5. तो
टू समराइज, आपने ये याद रखना है कि पहले अबंडेंस ऑफ आइसोटोप को मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ आइसोटोप के साथ। अबंडेंस क्या है? परसेंटेज। ये जो 75% और 25% है, दिस इज द अबंडेंस ऑफ आइसोटोप और रिलेटिव अबंडेंस। फिर मास ऑफ आइसोटोप क्या है? क्लोरीन 35 में 35 इज द मास ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन 37 में 37 इज द मास ऑफ क्लोरीन। तो ये मास ऑफ आइसोटोप है। इसको हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, इन दी एंड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और ये मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आइसोटोप हमारे पास है नियॉन के, नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22। इनकी रिलेटिव अबंडेंस क्या है? मैंने आर ए से रिप्रेजेंट किया रिलेटिव अबंडेंस को। नियॉन 20 की 90.92, नियॉन 21 की 0.256 एंड नियॉन 22 की 8.86। तो अगर हमने इसकी रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करनी है, कलर चेंज कर देता हूँ, wait, I'll write the question, find the relative atomic mass। तो relative atomic mass फाइंड करनी है, तो सबसे पहले इसकी relative abundance 90.92 मल्टीप्लाई बाय जो आइसोटोपिक मास है विच इज 20, देन इसमें आप प्लस करेंगे, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, प्लस करेंगे आप अगेन रिलेटिव अबंडेंस 0.256 इनटू आइसोटोपिक मास 21, अगेन प्लस करेंगे आप 8.86 जो इसकी रिलेटिव अबंडेंस है, मल्टीप्लाई बाय 22 विच इज़ द आइसोटोपिक मास, डिवाइड करें इसको 100 के साथ, कैलकुलेटर में डालें, आपके पास आंसर आ जाएगा 20.18। So this is it for this video. Thank you so much for sticking by, and अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है या बेनिफिशियल लगी है इन एनी सॉर्ट, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, and if you could share it, I would appreciate it a lot. Thank you so much.